Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Kanak, and today we are going to do a pick a card reading on the topic messages from Lord Krishna. Like, what message would he want you to know right now? And for that, as usual, we will have. I think we will have two piles for this one which will be based on some AI generated images. So yeah, see that reading which you are intuitively called to, and that shall have a message for you. So yeah, let's get started with the reading, and I shall see what you're reading. So, hello, group number one. Welcome to your reading. So, let's see what messages does Lord Krishna would want you to know. But before doing that, I would like to extend my warm gratitude to each and every one of you who are really showing love to this sacred space. Like, uh, you all are subscribing to my channel, commenting on how certain readings are resonating with you, like really liking the video, and all of this really means a lot to me, and I truly appreciate it from the bottom of my heart. So thank you for doing that. And yeah, just wanted to do that before I start the reading. So let's go. So let's see. What messages does Lord Krishna would want to give our group number one? Okay. Help me connect to the energies of our collective of group number one. What messages does group number one is meant to receive from Lord Krishna? Group number one messages from Lord Krishna. Clear, concise, accurate messages, please. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओके, ऑलरेडी कितने कार्ड्स गिर चुके हैं आप लोगों के लिए. सो आई थिंक वी विल ऑल्सो टेक ऑल ऑफ देम. सो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. सो let me just pull the cards one by one. So firstly we have the Page of Swords, Ten of Swords, Knight of Wands, Four of Wands. Okay, wow. So I was gonna pull one card and ये दोनों कार्ड मेरे हाथ में आ गए. So this is the Ten of Pentacles and the Six of Wands. The Sun card, the Page of Pentacles, the Five of Pentacles, and the King of Swords. Okay. Just give me a moment. I'll just. Okay. So now. पता है यहाँ पे एक चीज़ है.
uh, I'm sorry, just give me a moment. I'm just पता है यहाँ पे एक एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए, जहाँ पे ना आप कहीं न कहीं पीस को चूज़ कर रहे हैं अपने लिए। And I feel like, you are really someone who is really valuing like peace over everything now. And are you are like not really shying away from taking that, like really claiming peace in your life। मतलब ऐसा है कि जहाँ पे आपको मौका मिल रहा है ऑफ रियली मे बी डिटैचिंग फ्रॉम सर्टेन एनवायरमेंट्स, डिटैचिंग फ्रॉम सर्टेन पीपल, आप वो कर रहे हो। यू आर रियली डूइंग दैट एंड लॉर्ड कृष्णा आपको ये कहना चाहते कि प्लीज़ कंटिन्यू टू डू दैट। प्लीज़ कंटिन्यू टू like make way for peaceful energies। Please continue making way for peaceful energies in your life, because I feel this is the most important and the most significant thing जो आप like जो आपकी सोल कहीं ना कहीं महसूस करना चाहती है एंड उस एनर्जी में रहना चाहती है। लाइक हमारी सोल बहुत सारी एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहती है एंड मे बी लाइक रहना चाहती है, बट आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट एनर्जी दैट योर सोल wants to be in or rather embody is the energy of peace। एंड लॉर्ड कृष्णा यहाँ पर ये भी कह रहे हैं आपसे कि अगर आप लोग कोई फाइनेंशियल ट्रबल्स से भी गुजरे हैं, अगर आप लोग कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ से लाइक अभी भी जूझ रहे हैं या जूझ रहे हैं, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल उससे बाहर आएंगे। आप उससे बिल्कुल बाहर आएंगे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा आपको डायरेक्शन दिखा रहे हैं। लाइक ऑनेस्टली ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, बिकॉज लॉर्ड कृष्णा की एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो सच का साथ देते हैं, वो धर्म के पक्ष में होते हैं और वो उनका एक अपना वे है ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट। लाइक जैसे वो लीलाएं करते हैं ताकि वो कुछ सर्कमस्टांसेस को क्रिएट कर सकें एंड देन वो सर्कमस्टांसेस इन टर्न वो लाइक ट्रुथफुलनेस या धर्म के पक्ष में हो। लाइक दैट इज़ द वे लॉर्ड कृष्णा वर्क करते हैं। अब मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में भी ना ऐसा ही कुछ बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। अगर आपको कोई इश्यूज़ रहे हैं अबाउट लाइक योर फाइनेंसेस, बिल्कुल ऐसा होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। एंड यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि मेरे साथ यूनिवर्स है, मेरे साथ जब इतनी सारा सपोर्ट है, मेरे साथ जब मे बी लाइक जब मेरे साथ स्वयं कृष्ण जी हैं, तब मुझे क्यों डरने की ज़रूरत है, तब मुझे क्यों ऐसे सोचने की ज़रूरत है कि आई एम नॉट लाइक ओ गॉड आई एम सॉरी। एक कार्ड रह गया था आपके लिए, हाई प्रीस्टेस। सो या लाइक आपको यहाँ पे ऐसा सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि आप अकेले, बिकॉज आपको एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपको एनर्जेटिकली बहुत हद तक इन सब में बचाया जा रहा है बहुत चीज़ों से। एंड द थिंग इज़ कि पता नहीं क्यों ग्रुप नंबर 1 में आपकी रीडिंग में ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रही हूँ।
मेरे आसपास आवाज़ें आ रही है बार बार से, whenever I'm trying to speak something here, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कैसी एनर्जी जहाँ पे ना आपको जेन्युइनली कुछ चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। कहते हैं ना, माया माया हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, तो मुझे जेन्युइनली ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। नाउ फ्रॉम व्हाट, किससे डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है? फ्रॉम दिस नोइंग, दिस नोइंग ऑफ आई एम नॉट अलोन। सो लाइक ये एक नोइंग से आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, मतलब आपकी बार बार बुद्धि फेरी जा रही है बाय सर्टेन एनर्जीज अबाउट व्हाट फैक्ट, अबाउट द फैक्ट दैट कि अबाउट द फैक्ट दैट आई एम नॉट अलोन। सो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए जानना। ओके ओके, सो just give me a moment please. ओके, सो आई जस्ट फेल्ट कि मुझे थोड़ा पानी पीना है, तो मैं पानी पीने गई थी। एंड आई फील यहाँ पे ना आपको बोला जा रहा है, ग्रुप नंबर 1, कि आई थिंक यू बीइंग टोल्ड टू रिलैक्स हियर, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना थोड़े से यहाँ पे उतावले से हो रहे हो कुछ चीज़ों को लेके, या थोड़े से रेस्टलेस फील कर सकते हो इस टाइम के आसपास जब आपकी रीडिंग देख रहे हैं, या कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स रहे हैं आपकी लाइफ में जिनको लेके यू ऑलवेज हैव फेल्ट रेस्टलेस। एंड द थिंग इज़ कि आप उस रेस्टलेस एनर्जी को थोड़ा काबू में कर नहीं पाते हो थोड़ा सा, एंड उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं ये जो एक फैक्ट है ऑफ आई एम नॉट अलोन वाली फीलिंग, वो आप लाइक आप उसको आप उसको लाइक इन सम वे अपने साथ नहीं रख पाते हो ज़्यादा टाइम तक। लाइक इफ़ आई हैव टू से कि आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो अपने अंदर। आई डोंट नो इसका मतलब क्या है अपने अंदर मैनिफेस्ट करना, बट लाइक लाइक रियली उस ट्रूथ को आप जी नहीं पाते हो कि आई एम नॉट अलोन, आई एम सपोर्टेड बाय लॉर्ड कृष्णा। आप वो फील नहीं कर पाते हो जस्ट बिकॉज आपका माइंड आपको क्लाउड करता है, ये रेस्टलेस एनर्जी आपको क्लाउड करती है। यस, एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट फॉर यू ग्रुप नंबर 1 हियर, इट्स दैट कि आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यू आर नॉट स्टक, you are not in a loophole or in a like in a I don't know in a rabbit hole or something, या आप कुछ साइकिल में नहीं अटके हुए हो। you are pretty much out of like big troubles I would say। मुझे ऐसा लगता है, चाहे आपको अभी कितना ही लग रहा हो कि मैं कोई ट्रबल के अंदर हूँ या मेरी चीज़ें नहीं काम कर रही है, ये सारी चीज़ें, बट यहाँ पर लॉर्ड कृष्ण आपको कह रहे कि आप जेन्युइनली उन ट्रबल्स से बाहर आने वाले हैं, एंड बिल्कुल उन चीज़ों से बाहर आप निकलेंगे ही निकलेंगे, इसकी पूरी श्योरिटी है यहाँ पे। येस, दैट इज़ द थिंग आई गेट फॉर यू गाइस, एंड आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट देर इज़ एन एनर्जी हियर जहाँ पे आपको बोला जा रहा है टू एक्चुअली not feel that you are in any way not supported like practically। like मैं कह रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दोस्त नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन नहीं है, या कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मैं अपनी बातें शेयर कर सकूँ, या कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं सब कुछ कह सकूँ जो मेरे दिल में है, like as it is, no filter, just me and my unfiltered self in front of that person। तो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए कृष्ण जी हैं, एंड
यू नो ये बात इतनी रियल क्यों है, मैं ये भी बताती हूँ आपको। पता है ऐसे कहते हैं कि आई डोंट नो ये मैंने कहाँ सुना है, बट आई रियली बिलीव इन इट। जब भी पहले तो मुझे लगता है कि कृष्ण जी अ, अपने अपने बच्चों को या अपने लाइक जिनसे वो प्यार करते हैं, कृष्ण जी उन्हें चुनते हैं, चाहे हम कृष्ण जी को चुने या ना चुने। एंड कृष्ण जी की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो, अगर आप रो रहे हैं, अगर आप या रो भी नहीं रहे, अगर आप इतना एक ग्रीफ फील कर रहे हैं अपने अंदर, एक सैडनेस फील कर रहे हैं, तब कृष्ण जी आपके आसपास हमेशा होते हैं। उनकी एक एनर्जी, उनकी एक वार्मथ वाली एनर्जी आपके आसपास हमेशा रहती है। इफ़ यू फील लाइक कि ऐसा नहीं हुआ है, देन उनको अगर आप मन से मानोगे कि हाँ वो मेरे पास हैं, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो वो जेन्युइनली आपको आपकी वार्मथ फील, वो जेन्युइनली वो वार्मथ आप फील कर पाओगे। एंड इट्स लाइक व्हेन यू आर इन दैट एनर्जी, तब तो वो आपके पास है ही। एंड व्हेन यू आर इन यू नो इन योर हैप्पी सेल्फ, इन योर इनर चाइल्ड वाला प्लेफुल सेल्फ, तब कृष्ण जी भी आपके साथ उस प्ले वाली एनर्जी में होते हैं। वो आपके लिए वो आपके लिए वो चीज़ें करवाते हैं जहाँ पे आप उन चीज़ों से लाइक और अपनी वाइब्रेशन हाई कर सकें। तो क्लियरली कृष्ण जी इज़ नॉट जस्ट लाइक, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो गॉड को एक फादर फिगर या एक मदर फिगर वे में देखते हैं, गॉड या गॉडेस को। बट कृष्ण जी इज़ ट्रूली अ कंपेनियन, वो साथी हैं सबके। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट ग्रुप नंबर वन की आपके लिए कृष्ण जी आपके कंपेनियन है फॉर लाइफ। इवन इफ़ यू हैव literally nobody standing up for you in certain circumstances, in some situations, you have him always for you. And trust me, वो आपको आपकी presence, सॉरी वो आपको उनकी presence, सॉरी वो आपको अपनी प्रेजेंस बिल्कुल फील करवाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो आपको बिल्कुल अपनी आई वुड से एनर्जी यहाँ पर लाइक उनकी प्रेजेंस की साइंस आपको वो देते हैं, दैट्स फॉर श्योर। आई गेट दैट वाइब फॉर यू, ग्रुप नंबर वन। सो आई वुड लाइक टू जस्ट सी वंस what advice does Lord Krishna would want to give group number one? क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे ग्रुप नंबर वन को? ओ गॉड, ये बहुत सारे, हम ये नहीं लेंगे, सॉरी प्लीज़। क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे ग्रुप नंबर वन को? ओके, वाह, ठीक है। आई थिंक आपकी एडवाइस ना बहुत सीधी है और बहुत सटीक है। एंड इट इज़ दैट कि आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप लाइक, या आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको एक ऐसे माइंडसेट में, या माइंडसेट छोड़ो, आपको एक ऐसी एनर्जी में, एक ऐसा आई वुड से लाइक वाइब के अंदर आना है जहाँ पर आप ज़्यादा सोच नहीं रहे हो। आप थोड़े अपने लाइक आप अपने थोड़ी गट फीलिंग से चल रहे हो। आप थोड़े अपने लाइक मन तो मैं नहीं कहूँगी, माइंड आ जाता है क्योंकि उसके अंदर, बट लाइक आपकी उस गट फीलिंग से आप चल रहे हो। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर। यू मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन, दैट इज़ दी एडवाइस जो कृष्ण जी आपको देना चाहते हैं यहाँ पे। बिकॉज आई फील कि आपका आपकी आधी प्रॉब्लम्स ही इसलिए बिकॉज आप माइंड से डिसीजन लेते हैं। एंड जब आप माइंड से लेते हैं, यू आरंट एबल टू you aren't able to see any direction, you aren't able to, I would say, like आपको ना लाइक जो ओके, थोड़ा मैं ब्लैंक हो रही हूँ आपकी रीडिंग में।
आई थिंक दैट इज़ द थिंग। आप ना थोड़ा सा प्रेजेंट नहीं फील कर पाते हो मोमेंट में, क्योंकि आपका माइंड आपको ऑक्यूपाइड रखता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि आपको थोड़ा ये समझने की ज़रूरत है कि मैं यहाँ पे ओके मुझे लगा यहाँ पे मुझे थोड़ी देर रुकना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे लॉस्ट फील कर रहे हो सकते हो, सो आई थिंक आई हैड टू स्टॉप। या आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट मुझे मुझे जैसे ऐसे नहीं होता लैपटॉप पे किसी ने शट डाउन दबा दिया अचानक से एंड यू लाइक जस्ट ऑफ, लाइक नॉट दैट ऑफ बट यू नो। तो ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि आप अपने गट फीलिंग से डिसीजन बनाओ। गट फीलिंग की सुननी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपको एक डायरेक्शन, आपकी सोल को एक फील होगी अबाउट योर डिसीजंस, विच अदरवाइज़ अगर आप माइंड से अपने डिसीजंस लोगे तो आपको एक डायरेक्शन लेस वाली एनर्जी आएगी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक decisions based on your gut feelings. And okay, I think I need one more card. I need one more card. Thank you. Okay, we have two. That is enough. Yeah. और पता है यहाँ पे ये भी है, आप ना आपकी एक ऐसी एनर्जी की आप हार्ड वर्क कर रहे हो यहाँ पे, बट वो थोड़ा सा उस हार्डवर्क की डायरेक्शन नहीं है। उस हार्डवर्क की डायरेक्शन नहीं है। अब उस हार्डवर्क की डायरेक्शन क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है बिकॉज यू नो आपकी सोल को, या इनफैक्ट हम सबकी सोल्स को पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, या किस डायरेक्शन में हम अपने अंदर का एक फ्लो स्टेट, या एक एक नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग वाली एनर्जी हम ला सकते हैं। कौन सी चीज़ के अंदर, मे बी कौन सी जगह पर, एवरीथिंग हमारी सोल के अंदर वो इंटेलिजेंस होती है। तो आई फील आपके लिए ना इसलिए बोला जा रहा है कि आपको अपने गट फीलिंग से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में आप डायरेक्शन लेस हार्ड वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हो, रादर देन हार्ड वर्क विथ अ डायरेक्शन। या लेट्स गो। एनीथिंग इन स्पिरिट। या और पता है यहाँ पे एम्परर है, एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, और एम्परर का कार्ड अब अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो दिस पर्सन इज़ रियली ओनिंग अप देयर लाइफ, दिस पर्सन इज़ रियली ओनिंग अप देयर everything, their decisions, their attitude, their way of being, everything, because they feel confident within themselves। और वो confidence तभी आ रहा है when they are really able to go with what they feel, what they think is the correct decision, या जो उन्हें लग रहा है कि वो सही है। तो वो एक सही की समझ, वो आई थिंक आपके लिए इंट्यूशन की सुनने से आएगी। यहाँ पर ये चीज़ है। ओके, सो आई थिंक दैट इज़ ऑल आई एम गेटिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 1। अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक वॉट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। And if you like how I read cards, you can connect to me through my email ID given in the description box below. So I shall see you there if you want that in case. Otherwise, मैं यहाँ हूँ ही। And yeah, please like, share and subscribe to my YouTube channel, to this sacred space for you all also. So please do that. It would make a lot of difference in my spiritual journey, and I hope that I make some difference in yours too. So please do that if you feel called to. And yeah,
I shall see you in my next reading. Until then, take care. Lots of love. Bye.